کو بتائیں بجلی کے یونٹ میں مزید ₹3.28 اضافہ۔ شہری بلبلا اٹھے، کہتے ہیں پہلے ہی بھوکے رہ کر بل ادا کر رہے ہیں۔ بجلی کے یونٹ میں مزید اضافہ مشکلات بڑھا دے گا۔ بجلی کا بل ادا کریں یا گھر کے اخراجات پورے کریں، سمجھ سے باہر ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حمزہ خورشید سے جو اس وقت گڑی شاہو میں موجود ہیں۔ جی حمزہ۔ ہاں جی بالکل، میں اس کو موجود ہوں حبیب اللہ روڈ گڑی شاہو کے علاقے میں، اور آج جو عوام پر ایک اور مزید بجلی کا بم پھینک دیا گیا ہے۔ جو بجلی کے یونٹ ہیں ان کو ₹3.28 جو ہے وہ مزید مہنگا کر دیا گیا ہے، اور اس کا اطلاق جو ہے وہ 1 اکتوبر سے شروع ہو چکا ہے۔ میرے ساتھ ایک عام شہری اس وقت موجود ہے، ان سے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ بجلی کا جو بل ہے وہ ₹3 اس میں یونٹ ₹3.28 مزید بڑھا دیے گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میرے بھائی پہلے سے بل زیادہ آ رہے تھے، اب تو انہوں نے اتنا زیادہ بل بھیجنا شروع کر دیا کہ ہم نے روٹی کھا لیں یا ہم بل اتار لیں۔ ٹھیک ہے، اب میں مزدور بندہ ہوں، یہ تو گھروں والے جو گھر میں بیٹھے ہوئے، میں مزدور بندہ ہوں، جو گاڑیاں چلانے والے ہیں وہ نہیں بل پے کر سکتے، میں سائیکل چلانے والا بل کیسے اتار سکتا ہوں؟ اگر بل اتار لیں تو گھر کا جو خرچہ چلا لیں، اگر خرچہ چلا لیں یا بل اتار لیں۔ کل ہی آئے ہیں ہمارے گھر میں میٹر اتارنے والے آئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں بل اتارو جی۔ بل ₹8,000 سے ₹16,000 آ گیا، ڈبل قیمتیں آ گئی، یہی مہینے میں فرق آ گیا۔ ڈبل تو نہیں نا آنا چاہیے، اگر ڈبل آ گیا تو ہم ڈبل کیسے کریں؟ قسط کروانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سارا اتارے نہیں تو میٹر اتارے گا، ایک مہینے میں میٹر کیسے اترے گا؟ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو شہری ہیں وہ شدید غصے میں نظر آتے ہیں اور شدید مشکلات میں بھی نظر آتے ہیں۔ شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی جو بجلی کے بل ہیں وہ اتارنا مشکل ہے، جو وابڈا والے یا متعلقہ ادارے والے ہیں وہ گھر میٹر اتارنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہم پہلے ہی جو بجلی کے بل ہیں وہ ادا نہیں کر پا رہے، تو اس میں ₹3 کا مزید اضافہ جو ہے وہ مزید مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حمزہ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ 588 افراد بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، 258 مقدمات درج کروا دیے گئے ہیں۔ بجلی چوری سے ₹6,67,908 ڈیڈکشن بل چارج کیے گئے ہیں۔ فہد امین کی رپورٹ۔ بجلی چوروں کے گرد شکنجہ مزید سخت، لیسکو کا بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ انسداد بجلی چوری مہم کے 25ویں روز 588 بجلی چور پکڑے گئے۔ تمام بجلی چوروں کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواستیں دے دی گئیں، 258 مقدمات درج کر لیے گئے۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 17 کمرشل، 1 زرعی اور 570 ڈومیسٹک شامل۔ ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ بجلی چوری میں ملوث تمام کنیکشنز منقطع کر دیے گئے۔ بجلی چوروں سے ₹6,67,908 ڈیڈکشن بل چارج کیے گئے۔ گجرپورہ کے علاقے میں صارف کو ₹10 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا۔ بستی سیدن شاہ میں ₹5 لاکھ جرمانہ کیا گیا۔ بحریہ ٹاؤن کے صارف پر ₹3,57,408 جرمانہ آئے۔ سندر قصور میں ₹3,25,872 جرمانہ کیا گیا۔ ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 11,578 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ اب تک 10,505 FIRs رجسٹرڈ ہو چکی ہیں اور 3,484 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ موٹر سائیکل سوار ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں سر فہرست۔ لاہور میں 9 ماہ کے دوران 34 لاکھ سے زائد موٹر سائیکل سواروں نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ لاہور میں موٹر سائیکل سوار افراد ٹریفک قوانین توڑنے میں سب سے آگے۔ 9 ماہ میں ٹریفک قوانین کی 34 لاکھ سے زائد خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئیں۔ موٹر سائیکل سواروں نے 23,45,000 بار ٹریفک قوانین کو نظر انداز کیا۔ 11 لاکھ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ موٹر سائیکل سوار جلد بازی، ون وے لین لائن اور سگنل کی خلاف ورزیوں میں سر فہرست ہیں۔ رواں سال موٹر سائیکل سوار حادثات میں بھی پہلے نمبر پر رہے۔ 2,06,888 کار ڈرائیورز کو بھی چلان ٹکٹ جاری کیے گئے۔ 3,96,000 سے زائد موٹر سائیکل رکشہ ڈرائیورز نے ٹریفک قوانین کا احترام نہ کیا۔ احتیاطی تدابیر نظر انداز کرنے پر 35,000 ٹریکٹر ٹرالیوں کو بھی جرمانے کیے گئے۔ ٹریفک پولیس نے 500 سے زائد تعلیمی اداروں، سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر میں لیکچرز دیے۔ ہیلمٹ نہ پہننے والے شہریوں نے مختلف ہیلے بہانوں سے کام لیا۔ ہیلمٹ وہ جلدی میں بھول کے دعائیں لینے آئے تھے، ہیلمٹ ہے ہی نہیں تھا پاس میں، ادھر فیملی کو چھوڑنے آیا تھا تو ادھر سے ہو گیا۔ مال روڈ ٹریفک سیکٹر انچارج نوید بٹ کا کہنا ہے کہ شہریوں کو ٹریفک قوانین سے آگاہی کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ مور دین 80% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا ہے، اور جو قوانین ہیں ان پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ بیسیکلی یہ لوگ انفورسمنٹ کو مانتے ہیں۔ ہم نے ان کو بہت زیادہ ایجوکیٹ بھی کیا ہے، ان کو وارننگ بھی ایشو کی ہیں، لیکن جب تک انفورسمنٹ نہیں اچھی طرح ہوگی تب تک یہ نہیں۔ ٹریفک قوانین کی پاسداری کر کے شہری اپنی اور دوسروں کی جان بچا سکتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی، لاہور نیوز۔
LDA सिटी हाउसिंग स्कीम के अराजी मास्टर प्लान में मुबैना तब्दीली का इंकशाफ हुआ है। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट को मुंतकिल होने वाली अराजी दोबारा LDA सिटी को ट्रांसफ़र कर दी गई है। अराजी मुंतकिल होने से नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मनसूबा अमली तौर पर बंद हो गया। तफसीलात के लिए ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। LDA सिटी हाउसिंग मंसूबा LDA इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली से नया तनाज़ा खड़ा हो गया। LDA सिटी स्कीम अराजी मास्टर प्लान में मुबैना तब्दीली का इंकिशाफ। स्कीम के मास्टर प्लान के तहत 45,000 कनाल से अराजी अपार्टमेंट्स मंसूबा को मुंतकिल की गई। अराजी मुंतकिल करने से स्कीम के अलाटियों को प्लाट देना मुश्किल हो गया। मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए अपार्टमेंट्स मंसूबा की अराजी वापस LDA सिटी को दे दी। LDA सिटी अपार्टमेंट्स के लिए 8,496 कनाल अराजी मुख्तिस की गई। मुख्तिस अराजी पर 33,868 अपार्टमेंट्स की तामीर का प्लान था। मोज़े हलोकी में LDA ने 896 अपार्टमेंट्स की तामीर का आगाज किया। ताहम मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए LDA सिटी के बाकी अपार्टमेंट्स की तामीर का मंसूबा खत्म कर दिया गया। LDA गवर्निंग बॉडी के मीटिंग मिनट्स के मुताबिक LDA सिटी अपार्टमेंट्स के लिए मुख्तिस 8,200 कनाल अराजी वापस LDA सिटी को मुंतकिल कर दी गई। अपार्टमेंट्स की अराजी मुंतकिल होने से नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबा अमली तौर पर बंद हो गया। LDA गवर्निंग बॉडी ने अपार्टमेंट्स की तामीर से मुतालिक कमेटी तश्कील दे दी है। आपको बताएं वेस्टर्न इंजेक्शन का मामला। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने मजीद 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया है। अब तक 22 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल किया जा चुका है। मुअत्तल होने वालों में ड्रग इंस्पेक्टर, डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर और ड्रग कंट्रोलर शामिल हैं। तमाम ड्रग इंस्पेक्टर्स को डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी एक्ट 206 के तहत मुअत्तल किया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल। जी बिल्कुल, वेस्टर्न इंजेक्शन केस में महकमा प्राइमरी एंड हेल्थ केयर की जानिब से जो कार्रवाई है ये अमल में लाई जा रही है और आज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से मजीद 11 ड्रग इंस्पेक्टर को मुतल किया गया है जो कि पंजाब के मुख्य अजला के हैं। और अब तक मजमूई तौर पर वेस्टर्न इंजेक्शन के केस में 22 ड्रग इंस्पेक्टर को मुतल किया जा चुका है। जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके मुताबिक लाहौर से अपील टाउन से शलोक अनवर को मुतल किया गया है। वजीराबाद से इमरान खालिद, जबकि मेंशनाबाद से इमरान जफर को मुअत्तल किया गया है। चकवाल डिस्ट्रिक्ट से जफर इकबाल और सबीर रहमान को मुअत्तल किया गया है। अटक से सद्दाम हुसैन और बहावलपुर से हमाद हसन को मुअत्तल किया गया है, जबकि पाकपत से खलीक अनवर को मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल होने वालों में ड्रग इंस्पेक्टर, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और ड्रग कंट्रोलर शामिल है। तमाम ड्रग इंस्पेक्टर को डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006 के तहत मुअत्तल किया गया है। इस हवाले से सूबाई वकील प्राइमरी एंड सेकेंडरी डॉक्टर जमाल नासिर की जानिब से कहा जा रहा है कि तमाम तर जो मोतियाँ ये लाइट की जा रही हैं और जो इंजेक्शन के जो मुहरकात हैं इनको काफिले के दायरे तक पहुँचाएंगे ताकि इस तरह का आइंदा कोई केस या ये सामने ना आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल, आपने तफसीलन आगाह किया। और अभी आपको बताएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक का कहना है कि नवाज शरीफ को पिछले दरवाजे से ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर बिठाया गया तो मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। जेल में PTI चेयरमैन से कोई मुलाकात नहीं हुई। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक की पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम पहलवान से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में एजाजुल हक का कहना था कि चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद तासुर दिया गया कि वो काफ लीग में शामिल हो रहे हैं। एजाजुल हक ने कहा कि सियासतदानों से मुलाकात का मकसद इलेक्शन से पहले अच्छा इत्तेहाद बनाना है। आइंदा चंद रोज में मौलाना फजलुर रहमान और पीर पगारा से भी मुलाकातें करूँगा। मैंने अभी चौधरी शुजात से मुलाकात की है, अगली मुलाकात मेरी पीर पगारा साहब से हो रही है, उसके बाद मैं फजल रहमान साहब को भी मिलूँगा। उसके बाद सारी जमातों के साथ जो नई जमातें आई हैं उनसे भी मिलकर पूछेंगे कि उनका क्या इरादा है, उनका क्या मैनिफेस्टो है, वो क्या करने जा रहे हैं। सबसे मिलकर देखेंगे कि कौन सा रास्ता है मुल्क की बेहतरी के लिए, कि क्या किसी इशू पे सारे एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। एजाजुल हक का मजीद कहना था कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। उन्होंने तमाम सियासी जमातों पर जोर दिया कि वो मुल्क की मुआशरत के लिए इकट्ठे हो जाएं। नवाज शरीफ को पिछले दरवाजे से जबरदस्ती इक़्तिदार पर बिठाया गया तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अब अगर किसी को पिछली रास्ते से ला के बिठाने की कोशिश की तो मैं समझता हूँ कि मुल्क को जहाँ पर हम खड़े हुए हैं आज, इतना बड़ा एक वॉइड है, इतना बड़ा एक वैक्यूम है, और अगर गलत तरीके से इसको भरने की कोशिश की तो अगर ये फट गया तो उससे फिर मुल्क को नुकसान है। इस मौके पर एजाजुल हक ने मोहम्मद नदीम पहलवान को मुस्लिम लीग ज़िया में शमूलियत की भी दावत दी।
रहनुमा पीपल्स पार्टी समीना खालिद घुर्की का कहना है कि तमाम मसाइल का हल आम इंतखाबात ही हैं। पीपल्स पार्टी जद्दोजहद पर यकीन रखती है, इलेक्शन में ख्वातीन का किरदार अहम होगा। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी वुमेन विंग सेंट्रल पंजाब की सदर समीना खालिद घुर्की ने कहा, पार्टी के उम्मीदवारों की जीत में खवातीन अहम किरदार अदा करेंगी, पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी साफ शफाफ इलेक्शन चाहती है। इस वक्त सभी मुश्किलों का शिकार हैं, सब मुसीबत का शिकार हैं। ये जो महंगाई है वो सभी के लिए है और हम लोगों ने एहतजाज करके भी देखें किसके लिए एहतजाज करें। एहतजाज ये है ना कि कह रहे हैं इलेक्शन टाइम पे कराएं, ताकि जो आएगा वो इसका कोई हल निकाले ना। ये जो केयर टेकर हैं उनसे वो जो आए 6 माह के लिए टाइम पीरियड पहले पता है कि या इतने दिन के लिए आए हैं, उनसे क्या डिमांड करें। और आप देखें ना कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि इलेक्शन हो और फिर उसके बाद पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जो कदम है वो उठाए जाए ना। अभी एहतजाज किसके साथ करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि महंगाई हकीकत है जिसका सब शिकार हैं, इलेक्शन नागुज़ीर हैं। कैमरामैन ज़िशान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्पेशल एजुकेशन दाखिला मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। स्पेशल बच्चों को मुआवन आलात की तकसीम के प्रोजेक्ट का भी आगाज़ किया गया है। वज़ीर आला ने पायलट स्कूल की हालत ज़ार बारे भी बड़े इंकशाफ कर दिए। लियाकत अली की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्पेशल एजुकेशन दाखिला मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने स्पेशल बच्चों को व्हील चेयर्स, हेयरिंग एड्स और सफेद छड़ियाँ पेश की। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले स्पेशल तलबा को मेडल्स भी पहनाए। नन्हे स्पेशल मुसव्विर इब्राहिम को अपनी जेब से 50,000 रुपए का इनाम दिया। तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी का कहना था कि महकमा स्पेशल एजुकेशन के लिए जो भी करना पड़ा फर्ज समझ कर करेंगे। स्पेशल एजुकेशन का कोई भी प्रोजेक्ट मेरे हमारी कैबिनेट के सामने आया, इंशाल्लाह हम उसको 1 मिनट की भी ताख़ीर के बगैर अप्रूव करेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, कोई चीज़ जो इनको अपग्रेड करने के लिए ज़रूरत है बिल्कुल आप लेके आएँ और इंशाल्लाह ताला हम उसको डिस्कस करेंगे और उसको फाइनल करेंगे। स्पेशल एजुकेशन के लिए नेक ख्वाहिशात हैं, जो कुछ भी स्पेशल एजुकेशन के लिए हम कर सकते हैं वो करेंगे, फर्ज समझ के भी और इबादत समझ के भी। वज़ीर आला ने बताया कि इन्हें पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल वहादत रोड के हालात देखकर बहुत तकलीफ हुई। वहाँ 60 टीचर्स में से 35 इलेक्शन ड्यूटी पर हैं, बाकी छुट्टियों पर हैं। पायलट स्कूल की अबतर हालत की हम ही जिम्मेदार हैं, बच्चों का क्या कसूर है। गवर्नमेंट पायलट स्कूल वहादत रोड अचानक चले गए। उस स्कूल में टोटल 60 टीचर हैं। उन 60 टीचर में से 35 टीचर इलेक्शन कमीशन की किसी ड्यूटी पे चंद रोज़ से गए हुए हैं। इस बदतर हालात को हमें, मेरा ख्याल है कि हमें पहले दिन गेज करना चाहिए। मेरी कैबिनेट का कसूर है, हमारे महकमा तालीम का कसूर है। उन बच्चों का क्या कसूर है जो एक घंटा, एक बच्चा 1 घंटा दूर से स्कूल में पढ़ने आता है। वज़ीर आला का कहना था कि 7 साल से पायलट स्कूल में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की क्लास जारी है, मगर अभी तक वहाँ उस्ताज़ा ही तैनात नहीं किए गए। इसी तरह स्कूल चलाने हैं तो बेहतर है इनको बंद कर दें। एक क्लास में मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। उन बच्चों का कल इस्लामियात का एग्ज़ाम था, बच्चा एक खुला, दूसरा खुला, पूरी क्लास में खुल के बाद शुरू। उन्होंने कहा कि हमसे एग्ज़ाम ले रहे हैं मगर हमें तो कोई पढ़ाता ही नहीं, तो आपने हमसे एग्ज़ाम किस चीज़ का लेना। उनकी बुक्स देखी, उनकी कॉपीज़ देखी, खाली पड़ी थी और कल सरकारी तौर पे उनका एग्ज़ाम था। और वो कहते हैं जो टीचर आता भी है पढ़ाने वो या मोबाइल फ़ोन पे लग जाते हैं, वो कहते हैं रीडिंग कर लो बस और करके उसके बाद वो चले जाते हैं। वज़ीर आला का कहना था कि एक क्लास में जाकर मालूम हुआ कि बच्चों का इस्लामियात का पेपर है लेकिन इन्हें कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। कैमरामैन नोमान के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, पंजाब की निगरान हुकूमत का आसाना है जड़ावाला पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमती जवाब आने के बाद कार्रवाई 11 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए वकला को बहस की हिदायत कर दी है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट में सानेहा जड़ावाला की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने बिशप आजाद मार्शल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सानेहा जड़ावाला की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात में मुलविस जिम्मेदारों का तयन हो सके और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए लाहे अमल तय किया जा सके। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर ने हुकूमती फैसले से लाहौर हाईकोर्ट को आगाह किया। सरकारी वकील ने बताया कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात के लिए GIT बना रखी है। हुकूमत इस मामले पर जुडिशल कमीशन नहीं बना सकती। अदालत ने निगरान हुकूमत का जवाब आने के बाद कार्रवाई 11 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए वकला को बहस की हिदायत कर दी।
साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस पर कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। परवेज़ इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त पर समाअत करनी थी, लेकिन फाजिल जज की 2 रुकनी बेंच में मसरूफियत की वजह से समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। अदालती हुक्म पर DIG इन्वेस्टिगेशन समेत दीगर अफसरान ने पेश होकर गैर मशरूत तहरीरी मुआफ़ी मांग ली और बयान किया कि उन्होंने अदालती अहकाम की खिलाफवर्जी नहीं की। परवेज़ इलाही को लाहौर पुलिस ने नहीं, इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। IG इस्लामाबाद की जानिब से जमा करवाए गए जवाब में कहा गया है कि परवेज़ इलाही को गिरफ्तार न करने से मुतालिक अहकाम के बारे में इल्म नहीं था। परवेज़ इलाही की दरख्वास्त में फरीक न होने से भी अदालती अहकाम बारे मालूम नहीं हुआ। कैसरा इलाही ने अपने शोहर को अदालती हुक्म के बावजूद दोबारा गिरफ्तार करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात 90 रोज़ में ना कराने के इक़दाम के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने मज़ीद दस्तावेज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट। 90 रोज में इंतखाबात न कराने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने मकसद सलीम एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में तहरीरी जवाब दाखिल करा दिया, जिसमें कहा गया कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद की जाए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद पेश हुए। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी करते हुए वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। साथ में अटॉर्नी जनरल ने मुआवनत भी तलब कर ली। दूसरी जानिब जस्टिस अब्दुल अजीज ने जुडिशियल एक्टिविज्म की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत, जिसमें मुल्क भर में 90 रोज में इलेक्शन न करवाने का इकदाम चैलेंज किया गया। अजहर सदीक एडवोकेट ने इस्तदा की कि अदालत इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इलेक्शन कराने के अहकाम जारी करे और सदर ममलिकत को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। यहाँ पर आपको बताएं कि सेशन कोर्ट में एक बार फिर तालाबंदी हो गई। बादशाह सेशन जज लाहौर कैसर नसीर भट्ट के हुक्म पर दरवाजे खोल दिए गए और अदालतों में मामूल के मुताबिक काम शुरू हो गया। हड़ताल करने पर साइलिन वकला के खिलाफ फट पड़े और कहा, हम दूर दराज इलाकों से इंसाफ के लिए आए हैं, हमें अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। नुमा नूर की रिपोर्ट। थाना इस्लामपुरा में वकला पर मुकदमे के अंदराज का मामला। वकला ने सेशन कोर्ट के मरकजी दरवाजों को ताले लगा दिए। सेशन कोर्ट में पुलिस और साइलिन का दाखिला बंद कर दिया गया। सेशन कोर्ट के दरवाजों के बाहर साइलिन की लंबी कतारें लग गईं। अदालती एहलकार भी मरकजी दरवाजे तक महदूद हो गए। परेशान साइलिन वकला के खिलाफ फट पड़े। साहिवाल से आए हैं, हमारी इधर पेशी है, अबूरी जमानत क्यों रही है, वकील साहब अंदर जान ही नहीं देंगे। अगो साहब दे हाजिर होवांगे तो साड़ी को सुनेगा। सुबह से आए हैं, जलील हो रहे हैं, काड़ा से आए हैं, सफ़र देख लें, कोई बात नहीं सो रहा, कोई कुछ नहीं, सारे बेचारे जलील हो रहे हैं। इधर क्या कसूर है हमारा? सेशन जज लाहौर कैसर नजीर भट्ट के हुक्म के बाद सेशन कोर्ट के तमाम दरवाजे खोल दिए गए। सेशन जज का कहना था कि साइलिन और पुलिस को दाखिले की फौरी इजाजत दी जाए। सेशन कोर्ट में दायरगी ब्रांच में मामूल का काम शुरू कर दिया गया। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात में कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। वकला की हड़ताल पर साइलिन वकला के खिलाफ काफी गुस्से में दिखाई दिए और इंसाफ देने का मुतालबा करते रहे।